بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا حصہ تعلیمات 3 1 تا 2 سالہ تخصصات اور شارٹ کورسز۔ اسکیم آف اسٹڈیز 3 1 to 2 year of specialization شارٹ کورسز۔ دینی مدارس کے فضلاء کرام کو عملی زندگی میں بہتر سے بہتر انداز میں دین کی خدمت سر انجام دینے کی اہلیت پیدا کرنے کے لیے جامعۃ الرشید نے مختلف قسم کے کل وقتی اسپیشل کورسز کا اجرا کیا ہے۔ ان کورسز کی تعداد 6 ہے جو بنیادی طور پر صرف علماء کرام کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اب تک ان تخصصات سے 1113 طلبہ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ ان تخصصات کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ کورس کی تکمیل سے پہلے ہی مختلف تعلیمی اداروں کی طرف سے رابطہ اور انتخاب کر کے تعلیمی خدمات کے لیے تقرری کر لی جاتی ہے۔ تخصص فی الافتاء، تخصص فی الدعوہ والتدریس، تدریب المعلمین، تخصص فی القراءۃ، تخصص فی فقہ المعاملات المالیہ، صحافت کورس، انگلش کورس، شارٹ کورسز۔ تخصص فی الافتاء، جو فضلاء کرام علوم دینیہ میں اعلیٰ استعداد رکھتے ہوں، جامعۃ الرشید انہیں فن فقہ و فتویٰ کے میدان میں پروان چڑھانے کے لیے ایک بہترین درس گاہ ہے۔ اس شعبے میں تخصص جامعہ کی ممتاز ترین خصوصیات میں سے ہے اور یہ سلسلہ تقریباً نصف صدی سے شاندار انداز سے جاری ہے اور اہل علم میں معروف و مقبول ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ جامعۃ الرشید اس علمی سلسلے کا بانی ہے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ پاکستان میں یہ شعبہ سب سے پہلے جامعۃ الرشید کے مؤسس مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہی شروع کیا تھا۔ چونکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ صرف افتاء ہی نہیں ارشاد بھی سکھاتے تھے، اسی لیے صحیح تعلیم و تربیت کی خاطر آپ طلبہ کی تعداد بہت محدود رکھتے تھے۔ اب بھی بحمد اللہ اسی نہج پر کام جاری ہے اور تخصص میں طلبہ کی تعداد بہت محدود رکھی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 یا 12۔ اسی وجہ سے دارالافتاء والارشاد ناظم آباد کے قیام کے بعد 41 سال کے طویل عرصے میں یہاں سے 400 کے لگ بھگ علماء کرام نے تمرین افتاء اور اصلاح و تربیت کے مراحل طے کیے ہیں، جس کی سالانہ تعداد اوسطاً 6 بنتی ہے۔ تخصص میں داخلے کے لیے درس نظامی سمیت بقیہ علوم و فنون کا کڑا امتحان لیا جاتا ہے۔ افتاء کی تربیت 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے: تدریس، ٹیچنگ، مطالعہ، ریڈنگ، اور تمرین افتاء، پریکٹسنگ۔ درسی ایام 250 بنتے ہیں اور یومیہ تعلیمی گھنٹوں کی اوسط 10 ہے۔ اس طرح ہر طالب علم سالانہ 2500 تعلیمی گھنٹے صرف کرتا ہے۔ ان سالانہ 2500 تعلیمی گھنٹوں کو ہر طالب علم 930 درسی گھنٹے، 570 مطالعاتی گھنٹے اور 920 گھنٹے سالانہ افتاء نویسی کی مشق پر صرف کرتا ہے۔ تمرین افتاء اس شعبے کا سب سے اہم اور مرکزی جز ہے۔ شرکائے تخصص کو پہلے دن ہی سے تخریج کے لیے مختلف مسائل اور موضوعات دے دیے جاتے ہیں، جن کا جواب وہ کئی کتابوں کے مطالعے کے بعد تیار کر کے لاتے ہیں۔ تقریباً 3 ماہ کی اس مشق کے بعد 1 محرم الحرام کو تمرین افتاء کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے اور ہر طالب علم سال کے اختتام تک مختلف موضوعات پر 125 فتاویٰ لکھتا ہے، جن کا تعلق مختلف موضوعات سے ہوتا ہے۔ ان فتاویٰ کو 4 مختلف مفتیان کرام دیکھتے ہیں اور اصلاح کے بعد ان میں سے 2 حضرات اگر متفق ہو جائیں تو ان کے دستخط کے ساتھ فتویٰ جاری کر دیا جاتا ہے۔ ادب القضاء، اس مضمون میں اصول قضاء کی تدریس اور عملی مشق کے ساتھ کتب قضاء کا مطالعہ کروایا جاتا ہے۔ رائج الوقت فوجداری، دیوانی اور آئلی قوانین کا تقابلی مطالعہ اور مقدمے کی مثل تیار کرنے سے لے کر دعویٰ، جواب دعویٰ وغیرہ کی تنقیح، قانون شہادت و جرح اور فیصلہ لکھنے تک جملہ امور کی مشق کروائی جاتی ہے۔ یہ مضمون جامعہ کے اختصاص میں سے ہے۔ جغرافیہ و فلکیات، ان دونوں فنون کے مبادی و مقاصد مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھایا جانا جامعہ کا ایک ممتاز تعلیمی اختصاص ہے۔
इसी दौरान मुख्तलिफ नई तामीर की जाने वाली मसाजिद की समत क़िबला कायम करने, नीज़ अंदरून व बैरून मुल्क मुख्तलिफ शहरों के औक़ात नमाज के नक्शे वगैरह बनाने की मशक भी करवाई जाती है और तलबा अपने असातिज़ा के साथ जाकर मुख्तलिफ मसाजिद का क़िबला कायम करते हैं। जोग्राफिया तबई व कुरानी की तदरीस मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की मदद से होती है, जिसकी बिना पर मजमून दिलचस्प और जल्द ज़हन नशीं हो जाता है। तखस्सुस फिल इफ्ता साल दोम, साल अव्वल के शुरका में से मुंतखब शुरका को साल दोम में दाखिला दिया जाता है, जो 75 फतावा लिखने के साथ मुख्तलिफ इल्मी मौज़ूआत पर तहकीकी काम करते हैं। साल अव्वल के 125 और साल दोम के 75 फतावा मिलकर कुल 200 फतावा हो जाते हैं। ये तहकीकी काम कभी छोटे छोटे रिसालों या मुख्तसर मकालात की शक्ल में होता है और कभी किसी खास मौजू पर मवाद की तैयारी से ताल्लुक़ रखता है और कभी दारुल इफ्ता के रिकॉर्ड में मौजूद फतावा की तखरीज व तबवीब पर मुश्तमिल होता है। तखस्सुस फी फ़िक़्हिल मामलातिल मालिया, स्पेशलाइजेशन इन इस्लामिक फिस्कल जूरिस्प्रूडेंस। फ़िक़्ह इस्लामी तहक़ीक़ और रिसर्च तक महदूद महज़ एक इल्म फ़न नहीं, बल्कि ये वो मुकम्मल और मुनफरिद कानून मईशत व मुआशरत है जो बरस हा बरस तक इस्लामी रियासतों के सरकारी कानून के तौर पर दुनिया के एक बड़े हिस्से में नाफिजुल अमल रहा है। फिर फ़िक़्ह इस्लामी जिस दौर में भी किसी इस्लामी रियासत का सरकारी कानून रही है, उसमें वक्त और हालात के लिहाज से उसूल के तहत तब्दीलियाँ और इजाफे होते रहे हैं। इसलिए फ़िक़्ह इस्लामी ने हर दौर में ज़माने के इर्तिक़ा का साथ दिया है और उसे मुसलसल ऐसी बरगुज़ीदा शख्सियात की खिदमात हासिल रही हैं जिन्होंने ज़िंदगी के दीगर शोबों की तरह मालियात व मामलात के शोबे में भी अपने अहद की रहनुमाई का फ़र्ज़ निभाते हुए फ़िक़्ह इस्लामी की मालूमात में जदीद से जदीद अमसिला और जुज़ियात का इजाफ़ा किया है। इसलिए आज ज़िंदगी के हर शोबे की तरह तिजारत व कारोबार के शोबे में भी मुसलमानों के पास कुरान व हदीस की तसरीहात और फ़ुक़हा इस्लाम की तहक़ीक़ की शक्ल में जो ज़ख़ीरा मौजूद है, उसकी हैसियत एक ऐसे जामे और मुकम्मल कानून तिजारत की है जिसकी जामियत, तरतीब व तवाज़ुन और बारीक बीनी की मिसाल दुनिया के किसी बिजनेस लॉ में नहीं मिलती। दीनी मदारिस के निसाब में फ़िक़्ह, ख़ास तौर पर फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया की जिस कदर पढ़ाई हो रही है, माली मामलात के तरीक़ों में इस कम्युनिकेशन के दौर में जो जिद्दत और तेज़ रफ्तारी आई है, उसके तनाजुर में मामलात मालिया के अहकाम की इस कदर दर्स व तदरीस काफ़ी नहीं, बल्कि इन अहकाम को एक मुस्तकिल मजमून की हैसियत देकर तफसील व तहक़ीक़ के साथ पढ़ने की ज़रूरत। चुनांचे इस हवाले से मुख्तलिफ अकाबिर अरसा दराज से इस फ़िक्र में हैं कि दीनी मदारिस के निसाब में फ़िक़्हुल मामलात को खुसूसी अहमियत दी जाए। इसी फ़िक्र को अमली जामा पहनाने के लिए जामिअतुर रशीद ने अपने सिलसिले तखस्सुसात में एक और मुनफरिद तखस्सुस का इजाफ़ा करते हुए फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया की बुनियाद रखी है। अग़राज़ व मक़ासिद। फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया शुरू कराने के मक़ासिद ये हैं कि ऐसे बासलाहियत मुफ्तियान कराम तैयार किए जाएँ जो मामलात के इस्लामी अहकाम के साथ खुसूसी मुनासबत रखते हों और इस हवाले से फ़ुक़हाए इस्लाम की ज़िक्र करदा जुज़ियात और उनके इलल व हिकम का तफसील व तहक़ीक़ के साथ मुताला कर चुके हों। मईशत व इक़्तिसाद की जदीद इस्तिलाहात के साथ साथ अंग्रेज़ी ज़बान और बिज़नेस कम्युनिटी के मखसूस लब व लहजे और मुहावरे से भी मानूस हों, उनके कारोबारी तरीक़ेकार से आगाह हों और उनके मसाइल समझ कर उनकी रहनुमाई कर सकते हों। जदीद तिजारती शक्लों, ज़रूरतों और तकाज़ों को समझते हों और मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर होने वाली कारोबारी सरगर्मियों, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस और उनके मुकम्मल तरीक़ेकार का इदराक रखते हों। फ़िक़्ह के कारोबारी उसूल व क़वाइद पर बिलख़ुसूस और दीगर फ़िक़ही मसालिक के क़वाइद व उसूल पर बिलउमूम नज़र रखते हों। मामलात के बुनियादी उसूली अहकाम की रोशनी में तिजारत व कारोबार की नई पेश आमदा सूरतों का हल निकालने की अहलियत रखते हों और इस हवाले से माहिर असातिज़ाए कराम की निगरानी में तहक़ीक़ी मक़ाले की सूरत में किसी एक तिजारती मौजू पर तहक़ीक़ी काम कर चुके हों और इसके साथ साथ माहिर मुफ्तियान कराम की निगरानी में इफ्ता की तरबियत हासिल करके मामलात के बाब में फतवा देने की अमली मश्क कर चुके हों। इस्लामी बैंकिंग, ट्रेड, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और तकाफुल के मुरव्वजा निज़ामों को समझते हों।
مسائل کی عصری تطبیق کے لیے ایم اے اکنامکس کے مضامین کو نصاب میں ایک لازمی مضمون کے طور پر رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے فقہ المعاملات میں صرف ان ذی استعداد طلبہ کو داخلہ دیا جاتا ہے جو دینی علوم میں اچھی استعداد کے ساتھ ساتھ گریجویٹ بھی ہوں، تاکہ وہ کورس کے 2 سالوں میں ایم اے اکنامکس کے مضامین کو بھی پڑھ اور سمجھ سکیں۔ معاملات کے مسائل کی تمرین اور عملی مشق کے لیے کسی جدید تجارتی مسئلے پر ایک تحقیقی مقالے کے علاوہ معاملات مالیہ سے متعلق کم از کم 150 فتاوی لکھنے کو لازمی کیا گیا ہے، اور بحمد اللہ اس کا اس طور پر عملی انتظام بھی موجود ہے کہ SCS شریعہ کنسلٹنگ سروسز دارالافتاء صدر برائے تجارتی و مالیاتی امور، جو جامعہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اس میں تجارتی مسائل پر کام کرنے کے لیے فقہ المعاملات کے طلبہ کو بھیجا جاتا ہے تاکہ معاملات کے مسائل پر کام کرنے کے سلسلے میں ان کی عملی مشق ہو جائے۔ اس کے علاوہ طلبہ کو وقتاً فوقتاً مختلف مالیاتی اور تجارتی اداروں کے تعلیمی دورے بھی کرائے جاتے ہیں۔ تخصص فی القراءت، اسپیشلائزیشن ان قرآنک ایجوکیشن اینڈ مینجمنٹ۔ جامعہ کا یہ تخصص ملک بھر کے کثیر الانواع کورسز اور تخصصات میں منفرد و ممتاز قرآنی تربیتی تخصص ہے۔ 3 سال سے یہ تخصص شاندار انداز سے اساتذہ کی محنتوں اور اکابر کی دعاؤں سے جاری اور اہل علم میں مقبول و معروف ہے۔ 3 سالہ تجربات اور اس سے حاصل شدہ ثمرات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حفاظ علماء کرام سال بھر تربیت حاصل کرنے کے بعد تدریس قرآن، عوامی درس قرآن اور تدریس کتب کے میدان میں بہترین خطوط پر کام کر سکیں گے، نیز ان کی پوشیدہ صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں گی۔ اغراض و مقاصد: قرآن و قرات کے متروکہ فریضے کا احیاء، ملک کے ہر جامعہ میں علوم القرآن کے فنون 5 تجوید، قرات، فواصل، اوقاف اور رسم قرآن کا اجرا، قرآن اور قرات کے ماہر مدرسین و منتظمین کی تربیت، منکرین قرآن و قرات کا سدباب، دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق ماہر مفسرین قرآن کی تیاری، ائمہ مساجد کی بہترین تربیت و عملی مشق، تحفیظ، تجوید و قرات کے مدرسین کی تربیت۔ اس کورس کے اختتام پر ہر طالب علم روایات 10 میں 20 قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرتا ہے۔ اس طرح اوسطاً طالب علموں کی ایک جماعت سال میں 300 قرآن پاک کی مکمل تلاوت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دوران کورس ہر طالب علم کو 500 احادیث زبانی یاد کرائی جاتی ہیں۔ اس طرح ہر جماعت 7500 احادیث زبانی یاد کرتی اور پڑھتی ہے۔ 500 احادیث زبانی یاد کرائی جاتی ہیں۔ درس قرآن کی ترتیب اور نظم سکھایا جاتا ہے۔ تخصص فی الدعوہ والتدریس، اسپیشلائزیشن ان ٹیچنگ اینڈ پریچنگ۔ اصول تدریس اور اصول دعوت کا یہ جامع کورس فارغ التحصیل علماء کرام کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ جامعۃ الرشید نے نئے فارغ التحصیل علماء کرام کو ان دونوں شعبوں کے حوالے سے اعلیٰ اور معیاری صفات سے آراستہ کرنے کے لیے ایک جامع تربیتی کورس متعارف کروایا ہے۔ شرکا کو تدریس میں مہارت پیدا کرنے اور تعلیم و تربیت کے معیاری رویوں سے روشناس کروانے کے لیے اصول تدریس کی تعلیم دی جاتی ہے، جو دنیا بھر میں ایجوکیشنل سائنس کے حوالے سے اب تک ہونے والی پیش رفت سے ماخوذ ہے۔ ان میں سبق کی تیاری، اسباق کی سالانہ، ماہانہ اور یومیہ منصوبہ بندی، آلات تعلیم کا موزوں استعمال، کمرہ جماعت کا نظم و نسق، طلبہ کی نفسیات، باڈی لینگویج کا مؤثر استعمال، پرچہ جات بنانے اور جوابات چیک کرنے کے اصول کے علاوہ طلبہ کے مزاج اور عادت کو سمجھتے ہوئے ان کی اخلاقی تربیت کی مشق بھی کروائی جاتی ہے۔ جامعۃ الرشید کے اساتذہ نے تدریب المعلمین کے نام سے اپنا کورس تیار کیا ہے، جو اس حوالے سے دنیا بھر میں کیے گئے کام کا معیاری خلاصہ اور بہترین منتخب مواد قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم و تربیت کے موضوع پر لکھی گئی یہ 2 کتابیں شرکا کو باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں۔ طرق التدریس والتربیہ العلمیہ، شائع کردہ معہد الامام ابی حنیفہ، اصول التربیہ فی الاسلام، احمد فاضل خالد۔ اصول تدریس کے ساتھ اصول دعوت بھی شامل نصاب ہے، جن میں داعی کی صفات، مدعو کی نفسیات، دعوت کا اسلوب،
और मुअस्सर दावत के तकाज़ों से रूशनास करवाने के अलावा अमली मश्क के तौर पर हर शरीक को मौजू देकर बयान की तैयारी करवाई जाती है और असातिज़ा की निगरानी में बयानात करवाए जाते हैं। उसूल तदरीस, उसूल दावत और दरस कुरान की तैयारी के साथ एक अहम चीज़ उसूल तरबियत है। इन तमाम शुरका को इब्तदाई 4 माह जामियतुर रशीद में राइज मखसूस तर्ज पर सर्फ व नहव इजरा के साथ पढ़ाई जाती है और इसमें इतनी मजबूत इस्तेदाद पैदा करने की कोशिश की जाती है कि वो अगले साल इसी तर्ज पर ये दोनों बुनियादी उलूम पढ़ा सकें। 4 माह के बाद उन्हें फ़न फ़िक़्ह मखसूस तर्ज से पढ़ाने की तरबियत दी जाती है जो सिर्फ जामिया में ही राइज है और इस गरज के लिए हिदाया अव्वल को बुनियाद बनाकर पहले शुरका को मुतालिआ तैयार करवाया जाता है, फिर हिदाया के सबक में शरीक किया जाता है और आखिर में हर शरीक को 10-10 मिनट दिए जाते हैं कि वो दूसरे शुरका के सामने बतौर मुदर्रिस किताब पढ़कर दिखाए। सहाफत कोर्स, जर्नलिज्म कोर्स। जामियतुर रशीद में सहाफत कोर्स शुरू करने का बुनियादी सबब उलमाए कराम और दीन का दर्द रखने वाले मुसलमानों को सहाफत के मैदान में उतरने के लिए तैयार करना था। हफ्त रोज़ा ज़रब मोमिन और रोज़नामा इस्लाम के आगाज़ के बाद पाकिस्तानी सहाफत में एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। बेशुमार लोग जो अखबारात से वाबस्ता थे या जिनके दिल में सहाफत के पेशे से मुंसलिक होने की कसक थी, उनके बार बार राबितों ने कोर्स शुरू करने पर मजबूर कर दिया। नीज़ सहाफत की असरपजीरी और इस मैदान में मफाद परस्तों के कब्जे के बाइस सहाफत कोर्स शुरू करना नागुज़ीर हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोर्स की कामयाबी और उसके हमजहद फ़वाइद ने साबित कर दिया कि कोर्स का जामियतुर रशीद जैसे नुमायां दीनी मदरसे में आगाज़ एक इनकलाबी इक़दाम था। कोर्स के मकासद। ये कोर्स नौजवान फुज़ला को मज़मून निगारी और कलम के ज़रिए इज़हार माफ़ियुज़ ज़मीर की तरबियत देने के लिए शुरू किया गया है ताकि उलमाए कराम दावत दीन के मैदान में तहरीर के फ़न को मौसर तौर पर इस्तेमाल कर सकें और कलम के इस्तेमाल के मेयारी रवैयों की तरबियत पाकर दीनी उलूम की तर्जुमानी बेहतर से बेहतर अंदाज में करने के काबिल हो जाएं। कोर्स का बुनियादी मकसद उलमाए कराम को सहाफत से रूशनास कराना और फ़िक्री और नज़रियाती कारकुन तैयार करके मुल्क भर के मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग, अखबारात व जराइद और ख़बर रसां इदारों में भिजवाना है। इसी तरह उलमाए कराम को दीन के दिफा व तबलीग के लिए तकरीरी के साथ साथ तहरीरी मैदान में भी माहिर बनाना है। उम्मीदवारों का इंतखाब। माह शव्वाल में 15 फुज़ला का इंतखाब किया जाता है जो दीनी उलूम में अच्छी इस्तेदाद रखते हों और उर्दू ज़बान व बयान में मौसर सलाहियत, कुतुब बीनी व मज़मून फहमी के शौक़ और अदबी ज़ौक़ के मालिक हों और मुस्लिम उम्मा की खिदमत के जज्बे से सरशार हों। इनके इंतखाब के लिए पहले मालूमात आम्मा, असर जदीद के मसाइल का इदराक और मज़मून नवीसी की सलाहियत का इम्तिहान होता है और फिर पैनल इंटरव्यू के ज़रिए ज़हनी सलाहियत और फितरी रुझानात व मैलानात की जांच होती है। तरबियती सरगर्मियाँ। जायज़ों और इम्तिहानात की तकमील के बाद कामयाब उम्मीदवार 1 साला कोर्स मुद्दत दरासिया 10 माह में शरीक हो जाते हैं जिसका आगाज़ उर्दू इमला व कवायद, उर्दू तहरीर के आदाब की तरबियत और मेयारी उर्दू अदब के मुताले से होता है। साथ ही एक मुकम्मल और जामे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स शुरू हो जाता है जिसमें ग्रामर, कवायद और कन्वर्सेशन, बोल चाल के अलावा ट्रांसलेशन, तर्जमे की मश्क पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है क्योंकि आज की सहाफत में इंग्लिश से उर्दू सहाफती ज़बान में तर्जमे की सलाहियत नागुज़ीर हो गई है। मुख्तलिफ कंप्यूटर कोर्स MS ऑफिस, इन पेज, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और फ्री हैंड वगैरह भी साल के आगाज से शुरू हो जाते हैं। इन तलबा को पाकीज़ा इस्लामी सहाफत की अमली मश्क के लिए कुछ मुद्दत के बाद हफ्त रोज़ा ज़रब मोमिन और रोज़नामा इस्लाम में पर्चों की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल में शरीक किया जाता है और ये तलबा कोर्स के साथ साथ अमली तजर्बा हासिल करते हैं। अमली तरबियत। एडिटिंग, सुर्खियां बनाना 30 घंटे, प्रूफ रीडिंग 15 घंटे, रिपोर्टिंग 30 घंटे, इदारिया नवीसी 10 घंटे, पेस्टिंग, लेआउट 5 घंटे। इस्लामी सहाफत ऐसा शोबा है जिसे उलमाए कराम अमली व दावती सरगर्मियों के साथ साथ न सिर्फ इख्तियार कर सकते हैं बल्कि मुरव्वजा खिदमात को बेहतर और मुनज़्ज़म तौर पर अंजाम दे सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह जामिया का सहाफत कोर्स उलमाए कराम के लिए एक करामत तोहफा साबित हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स उलमाए कराम के लिए अंग्रेजी जबान की इफादियत मुसल्लम है। इस नागुज़ीर ज़रूरत को पूरा करने के लिए जामियातुर रशीद ने एक साला कोर्स माहिरीन की मदद से तैयार किया है। इस एक साला कोर्स के 1200 तालीमी घंटों को इस तरह तकसीम किया गया है। कुल तालीमी घंटे 1200, ग्रामर 360 घंटे यानी 30%, लिखना राइटिंग 180 घंटे 15%, पढ़ना रीडिंग 240 घंटे 20%, बोलना स्पीकिंग 240 घंटे 20%, सुनना लिसनिंग 180 घंटे 15%। चंद मखसूस मकासद तलबा मुनासिब अंग्रेजी ग्रामर सीख लें, कमरे जमात में और बाहर बोली जाने वाली अंग्रेजी समझ सकें, अंग्रेजी इक़्तिबास को पढ़कर हक़ाइक़ और आरा में फ़र्क कर सकें और मतलूबा मालूमात अख्ज़ कर सकें, पुरएतमाद होकर अपने ख़यालात का सही इजहार कर सकें, ज़ख़ीरा अल्फाज में खातिर ख़्वाह इजाफ़ा कर सकें, उर्दू जुमलों को फ़ौरन अंग्रेजी में तर्जुमा करने की आदत और महारत पैदा कर लें, किसी चीज़ वाक़े या हिदायत के इजरा को बआसानी लिख सकें। कोर्स की इफ़ादियत। इस कोर्स की इफ़ादियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2005 से अब तक होने वाले 4 कोर्स के शुरका में से अक्सर मदारिस में अंग्रेज़ी की तदरीस कर रहे हैं या अपने तौर से लैंग्वेज सेंटर कायम करके अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं। एक तालिब इल्म इंटरनेशनल रिफा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, एक जामशोरो यूनिवर्सिटी सिंध में पढ़ा रहा है और चंद शुरका स्कूलों में अंग्रेजी तालीम दे रहे हैं। शॉर्ट कोर्सेज। मुख्तसर दौरानिये के कोर्सों का एहतमाम अक्सर दौराने तातीलात होता है, जिसमें मुल्क भर के मदारिस से शुरका तशरीफ लाते हैं। जामिया में उनके क़याम ताम का मुनासिब एहतमाम किया जाता है। इन कोर्सेज का इनेकाद ज़रूरत और तलब के मुताबिक किया जाता है। तदरीबुल मुअल्लिमीन कोर्स, दौरे क़ज़ा व तहकीम, फ़हम दीन कोर्स, रद्द फ़िरक़े बातिला कोर्स, जोग्राफिया व फलकियात कोर्स, तरबियत हज कोर्स, अरबी बोलचाल कोर्स, समर कैंप। तखस्सुसात और शॉर्ट कोर्सेज के बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए मुलाहिज़ा कीजिए जामियातुर रशीद तारुफ़ खिदमात व अहदाफ़ का 4था बाब।